130 members rose in favor of Clause 6 and 2 members rose against it, as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the National Assembly. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا دن. فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کی آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور. حمایت میں 229 ووٹ آئے, مخالفت میں صرف 1 ووٹ پڑا. حکومت اتحادی مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی ایوان سے غیر حاضر. آئندہ 5 سال تک فاٹا میں قومی اسمبلی کی 12 اور سینٹ میں 8 نشستیں برقرار رہیں گی. فاٹا کے لیے مختلف صوبائی نشستوں پر انتخابات اگلے سال ہوں گے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے منظوری کا مرحلہ باقی. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی ہے. پلیز خاموش ہو, کوئی حیا کرو, خاموش ہو جی پلیز, کائنڈلی تشریف رکھیں. مہینے کنٹینر پہ گالیاں دیتے رہے ہو, تشریف رکھیں اور پھر آ کے بیٹھے ہوئے وہ خدا کا خوف کرو. کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کی شکلیں جو دیکھتے ہیں, کوئی شرم کرو. یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے. پلیز نو کراس ٹاک. سعد رفیق صاحب, جو لوگ منی لانڈرر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا. ایک رکن نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آج دیکھتا ہوں تو وہ ممبر ایوان میں نہیں ہے. عمران خان کا خواجہ آصف کو 3 سال بعد جواب. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ فخر ہے ان کی کوشش سے کرپٹ وزیر اعظم کو منی لانڈرنگ پر قصوروار ٹھہرایا گیا. امپائر صرف اللہ کو مانتے ہیں. پہلے 4 حلقوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. اسمبلی گئے, سپریم کورٹ گئے, الیکشن کمیشن گئے, کہیں سے رسپانس نہیں ملا. 1 سال کوشش کی, پھر دھرنا دیا جو کہ ہمارا سیاسی حق تھا. عمران خان مختصر خطاب کر کے رد عمل سنے بغیر چلے گئے. مجھے کچھ افسوس ہے کہ جو بھی تقریر ہوئی اس میں ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اس کی آج ضرورت نہیں. آج کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے کوئی نفرت کا پہلو سامنے آئے یا کوئی تنازع کا پہلو سامنے آئے. یہ سب چیزیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں. یہ سب چیزیں اس ہاؤس میں بھی کئی دفعہ زیر بحث آئی ہیں کہ دھرنا کیوں ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, کسی کو منی لانڈرر کہنا, یہ باتیں کچھ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں. پاکستان میں نفرت کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں, بدتمیزی کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں, ناک سے ہٹ کر باتیں کرنے کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں. وزیر اعظم کا عمران خان کی تقریر پر رد عمل. کہا کہ ان باتوں کا آج موقع نہیں تھا. کسی کو منی لانڈرر کہنا اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں. آج کے دن متنازع بات کرنا, جذبات مجروح کرنا درست فعل نہیں تھا. عوام سب جانتے ہیں دھرنا کیوں ہوا. بولے کہ فاٹا انضمام بل کو الیکشن میں تاخیر کا ذریعہ نہ بنایا جائے. پاکستان الیکشن میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. حکومت 31 مئی تک قائم رہے گی اور 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. کتنے کے بعد آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ یاد ہی نہیں ہے. بڑی دیر کی مہمان میں آتے آتے 5 سال میں 20 بار شرکت. فاٹا بل کی منظوری کے لیے عمران خان کی قومی اسمبلی آمد. صحافی کے سوال پر کہا انہیں یاد ہی نہیں کتنے عرصے بعد پارلیمنٹ آئے ہیں. اگر صحیح اسمبلی چلاتے تو ہر روز آتے. خورشید شاہ بولے بڑی دیر کر دی مہرباں, آتے آتے
सियासतदान वही कहलाता है जो असेंबली आता है। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम अब तक फैसला करने में नाकाम। मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान। खुर्शीद शाह ने मामले पर वजीर आजम के साथ मजीद बैठक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि वजीर आजम नामों के मामले पर अपनी बात से फिर गए हैं। वजीर आजम कहते हैं कि कल या पीर को मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हाफिज सईद के बारे में चीनी हुकाम से कोई गुफ्तगू नहीं हुई और न ही बाओ फोरम कोई मुनासिब फोरम था जहां इस मामले पर गुफ्तगू होती। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बाओ फोरम से पहले भी ये मौजू कभी जेर बहस नहीं आया। चीन ने भी भारतीय अखबार में शाया होने वाली खबर बेबुनियाद और गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दी। मातहत ने मुझे पैगाम पहुंचाया, मैं उसे बरतरफ कर सकता था, लेकिन मुल्की मफाद में नहीं किया, दरगुजर से काम लिया। मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद से इस्तीफा लेना भी उस बुर्दबारी का ही नतीजा था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है, कहने का, बात करने का। अदालत के सामने मामला आया तो मैंने बता दिया, हकायक थे, मंजर आम पर आने चाहिए। इन मसाइल ने 70 साल से हमारी जान नहीं छोड़ी। परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएस से ना निकाला जाता तो वो बाहर नहीं जा सकते थे। वजारत दाखिला वजीर आजम की मर्जी से ईसीएस से नाम निकालती है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डाल दी। साद रफीक बोले, जमहूरियत में जितनी जान थी उतनी देर परवेज मुशर्रफ को रोका गया। उनका नाम अदालत के हुक्म पर ईसीएस से निकाला। जमहूरियत को कमजोर करने में इमरान खान की जमात का मरकजी किरदार है। उन्होंने कहा, नफरत के जो बीज बोए गए आज वो काट रहे हैं। टॉक शोज में थप्पड़ मारे जा रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है। इनको अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ये सर टेम्परेचर जनाब स्पीकर, जो चीफ का लफ्ज है वो बिल्कुल मैंने इस्तेमाल किया। उनमें से एक यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम इमरान खान है। दूसरे का नाम जहांगीर तरीन है। सबर से सुने, सबर से सुने। और इनकी ये जुर्रत, उनके साथ ये बदमाशी करते हैं और फिर इनके पास इतनी शर्म और हया नहीं है कि उस बात की माफी मांगे। लीग के दानियाल अजीज को पीटीआई के नाइमुल हक के थप्पड़ की गूंज ऐवान में पहुंच गई। दानियाल अजीज ने कहा कि चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो आज भी उस पर कायम है। पीटीआई के इमरान खान और जहांगीर तरीन सर्टिफाइड चोर हैं। ये बदमाशी करते हैं और इनमें इतनी शर्म और हया नहीं कि माफी मांगे। दानियाल अजीज के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई ने अपने रद्द अमल में कहा कि टॉक शोज में दानियाल अजीज की बदतमीजी और ऊंच पर होती है। दानियाल अजीज दूसरों को चोर कहने पर माफी मांगे, दूसरों को चोर चोर कहने से नवाज शरीफ के दाग नहीं धुल सकते। कहा, दानियाल अजीज सियासी लोटे हैं। इन जैसे लोगों ने मुशर्रफ और अब नवाज शरीफ को जुबो दिया। उन पर लाजिम है कि वो अगले 24 घंटों में अपने शवाहिद सामने लाएं और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं मुतालबा करता हूं कि वो कौम से खुलेआम माफी मांगे। इस खुले तासुब का मुजाहरा करने के बाद वो इस मनसब पर कायम रहने का जवाब खो चुके हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इस्तीफा देकर घर चले जाएं। हमने तो सिर्फ ये देखना है कि किसी ने करप्शन की है या नहीं। अगर करप्शन की है तो वो नैब फिर उससे छोड़ेगा नहीं।
नवाज शरीफ पर मुबैना तौर पर 4 अरब 90 करोड़ डॉलर भारत मुंतकिल करने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को कानूनी नोटिस भेज दिया। चेयरमैन नैब से तौहीन आमेज प्रेस रिलीज पर 14 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। कहा कि चेयरमैन नैब माफी मांगे और 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। माफी न मांगने और हर्जाना अदा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके इल्जामात का गलत इंतखाबात धांधली है। ये नौबत भी आना थी कि बेटियों को मुकदमात में घसीटा जा रहा है। जिस जमाने का ये केस है उस वक्त मरियम का सियासत से दूर दूर तक का ताल्लुक वास्ता नहीं था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं हम दुनिया में मजाक बन गए हैं। जिन्होंने ये रिवायत कायम की है उन्हें ये सौदा महंगा पड़ेगा। बोले कोई समझता है कि मेरे आजम को शिकस्त देगा तो वो सख्त गलतफहमी में है। मरियम नवाज आज अगर कटहरे में है तो उसके जिम्मेदार खुद नवाज शरीफ हैं। जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ का अपना किया धरा है। उन्होंने जो बोया अभी तो वो काटा भी नहीं। पीपल्स पार्टी के मौला बख्शानियों का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि मियां साहब इंतकाम के वक्त भूल गए थे कि बेनजीर भुट्टो भी किसी की बेटी हैं। मियां साहब ने खुद अपने बच्चों को अपनी करप्शन छुपाने के लिए फंसाया है। JIT तफ्तीशी रिपोर्ट है जो नाकाबिले कबूल शहादत है। JIT सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के लिए बनाई गई थी, इस रेफरेंस के लिए नहीं। मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में 128 में से 46 सवालात के जवाबात रिकॉर्ड करा दिए। कहा JIT अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक उनका भी वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का था। सुप्रीम कोर्ट में दी गई दस्तावेजात में नहीं कहा गया कि लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल मालिक रही हूँ। जब गल्फ स्टील मिल लगी तो 1 साल की थी। हुदैबिया पेपर मिल्स के कर्ज से मुतालिक जाती तौर पर इल्म नहीं। शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे की समाअत। इमरान खान के वकील बाबर आवाम पेश नहीं हुए। अदालत का इमरान खान के वकील की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। कहा कि अगर आपको पेश नहीं होना तो फिर केस का फैसला कर देते हैं। जूनियर वकील ने अगली समाअत में बाबर आवाम के हर सूरत पेश होने की यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स के मामले पर 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश के बयान पर इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर रखा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार का लफ्ज लानत हज़फ करने का मुतालबा। कहा इंतजामी यूनिट की बात तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अल्फाज हज़फ ना किए गए तो जल्द से जुलूस होंगे। फैसल सब्जवारी बोले लफ्ज लानत गैर पार्लिमानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो सराइकी सूबे की बात कर रहे हैं, क्या उन पर भी लानत भेजी जाए? वज़ीर आला शहबाज शरीफ का झंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्रोजेक्ट का दौरा। कहा कि ये पाकिस्तान का गैस का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। 4 मंसूबों में सबसे बड़ा और तेजी से बनने वाला मंसूबा है। पंजाब से नेशनल ग्रिड में 5000 मेगावाट का इजाफा हुआ। नैब पूरी कौम को बताए। सुप्रीम कोर्ट शाबाश दे कि इन मंसूबों में काम करने वालों ने कितनी ईमानदारी से इन तमाम मंसूबों में 160 अरब रुपए की बचत की। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा फौजिया कसूरी पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल ने कहा इशरत उल इबाद रुस्वा होकर गवर्नरशिप छोड़ गए। फारूक सत्तार भी रुस्वा हुए, वो अब तारीख बन चुके हैं। फौजिया कसूरी ने कहा 22 साल बाद जिनका एहतसाब कराना था PTI उन्हें दोबारा असेंबलियों में भेजना चाहती है। ये ठीक है। अब अगर किसी के मुंह से आवाज निकली मैंने देखी, सबसे पहले वो बंदा बाहर जाए। कम है, इधर आओ। ये जो बोल रही थी, इधर आओ। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? मिनाजुल कुरान के रहनुमा खुर्रम नवाज गन्नापुर का तालिबात को डांटने का मामला। मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तालिबात को 1 जून तक हॉस्टल खाली करने का हुक्म। इंतजामिया का कहना है कि तालिबात ज़ाबिता अखलाक और सिक्योरिटी पर अमल नहीं चाहती, इसीलिए हॉस्टल बंद कर दिया। नए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेयो ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में
सिफारत खाने और कौंसल खानों में काम करने वाले अमरीकी एहलकारों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिफारतकारों से बदसलूकी की हकीकी मसला है जिसके लिए इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद का जायजा ले रहे हैं। 2017 के मुकाबले में 2018 में कम फंड्स रिलीज किए गए। The blood is on your hands. You continue to sign off on the genocide of a native people. You are an accomplice to terrorists and colonizers. तुम्हारे हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं, तुम कत्ले आम करने निकली हो। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली की यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन आमद पर तलबा का सख्त एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले ली। Beautiful piece of bowling. All gone. Huge. That's the line. That is a much better line. लॉर्ड्स में टीम पाकिस्तान छा गई। बॉलर्स ने गेंदें घुमाई, फील्डर्स ने भी खूब साथ निभाया। इंग्लैंड लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स के सबसे कम स्कोर पर आउट। पूरी टीम 184 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद अब्बास और हसन अली की 4-4 विकेटें, आमिर और फहीम अशरफ की 1-1 विकेट। Up in the air, that should be out mid-on. Yes, good catch. Really good catch. 5 दिन से जारी सूरज का गुस्सा कुछ कम हो गया, पारा 37 तक आ गया। कराची में समंदरी हवाएं चलने लगी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। सिंध के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। नवाबशाह 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू, सक्खर और मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 45 डिग्री, लाड़काना और हैदराबाद 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 41, इस्लामाबाद 37, पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। न अमेरिका का, न बरतानिया का, न चीन का और न ही रशिया का। दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का करार। दुनिया के 189 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तान का नंबर 98, सिर्फ 33 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री। फहरिस्त में सिर्फ अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम और इराक से बेहतर। कीचड़, रुकावटें, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, इस पर धुआं उगलते भागते ट्रैक्टर्स। खतरों के खिलाड़ियों ने खूब महारत दिखाई, हजारों से दास्तान। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। संजू में संजू का किरदार ही तो सब कुछ है। सुनील दत्त के किरदार में इतना दम नहीं। आमिर खान ने फिल्म संजू में सुनील दत्त का किरदार ठुकराने की वजह बता दी। ये किरदार आप पारेश रावल अदा करेंगे। Hello boys. दुनिया की सबसे मुनफरिद इमारत दहशतगर्दों के निशाने पर। क्या सिक्योरिटी चीफ बचा पाएगा वहां रहने वालों को? एक्शन थ्रिलर फिल्म स्काई स्क्रेपर की झलकियां जारी। फिल्म जुलाई में रिलीज की जाएगी।